So, proceeding ahead where we left last time, and there is a question that I've received, which I thought let's begin with that. So, the question that I've received is, the more I am focused on Swadharma, I'm realizing a lot of uncomfortable equations, control manipulation, etc., and feeling distant from other people. Then how will my heart be open when I'm feeling anger and resentment? I know this is a process, but how do I get out of it? Yeah. Anybody would like to say anything about it? Anybody else experiencing something of this kind? ये मुझे लगता है कई बार, to practice nishkam karma, to be understanding of everybody, to control anger and such emotions and still be rational. तो मुझे कई बार लगता है कि if the love और डांट कर नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, प्रेम से बोलना है, if that is not coming naturally to me, then this Hmm. is a diplomacy act that I'm putting up. ऐसा मुझे लगता है. ये Hmm. तो if you want to react in a certain way to a behavior and you're controlling to get a certain response from the other side, so this feels like manipulation. Why would you look forward to certain response from the other side? Are they not free to respond in the way they wish? Or the way they are overtaken by their subconscious, their own patterns? But do we not say कि सही बिहेवियर किसी से चाहिए तो प्यार से काम करवाना है, डिप्लोमेसी से करवाना है, जैसे हम बिहेव करेंगे, जैसे हम रिएक्ट करेंगे सामने से वैसा ही संसार मिलेगा. तो वैसे ही चलता है ना, संसार तो टिट फॉर टैट है. हम्म. आप यदि सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो आप जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, उचित है. पर क्या यहाँ हम संसार के बारे में बात कर रहे हैं? इज दैट आवर कंसर्न? और इज आवर कंसर्न to be able to walk on the path that Krishna is suggesting us? पर फिर हम समभाव कैसे रहेंगे ना, कैसे देखेंगे अगर हमें हमें कोई चीज अनुचित लग रही है और हमारा नेचुरल रिएक्शन एजिटेशन का है, तो उसको हम समत्व से कैसे देखेंगे? हाउ विल वी बी बैलेंस्ड if that being balanced is not coming naturally? Then what does that mean? विद्या, आप कुछ कह रहे हो? या जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम्म. अगर आपके मन में ये सवाल उठता है, that means it's too early for it. Like when you are on this path, it comes to you naturally. It's not that without even knowing it. Just for instance, like अगर मेरा स्वभाव पहले किसी भी चीज के ऊपर रिएक्शन करना था और अब वो वैसा नहीं है, तो वो मेरी अवेयरनेस है, मैं नोटिस करती हूँ कि ये कब कैसे हो गया पता भी नहीं चला. So it's a process that happens naturally when we are on this path. But yes, you have to constantly work towards it, but not, I don't think I was looking for that. I wasn't looking for that. This is what's going to give me. It just happened. तो ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. तो मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है. और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब हम इस पाथ पे हैं, तो जब एक टेक्स्ट आपने भेजा भी था इस सुबह को, तो वो एक इसका साइड इफेक्ट है. व्हेन वी आर ऑन दिस पाथ, यू स्टॉप वरिंग अबाउट एवरीबॉडी एल्स बिकॉज इट्स नॉट माय प्रॉब्लम. ये सिर्फ मुझे अपने ऊपर ध्यान देना कि मैं कैसे अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ. सो वंस यू स्टार्ट taking everything on you, how I can improve myself, how can I work with my sensitivities, how can I work on my expectations, and I work towards it, something happens and shifts that things that trigger you won't trigger you. People who made you angry won't make you angry because you don't get caught up in that.
You don't get caught up in the story, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर है. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. What you're saying, Vidya, doesn't naturally तो इतनी आसानी से नहीं होगा. It will not happen naturally so easily. So, Yeah, that's one thing that I have to add to it. The journey that you go through, that I have gone through, वो easy नहीं होती है. It's gonna be, there will be times when you're gonna hate yourself because you're literally, क्या बोलते हैं, जैसे अपने को हर आवरण से हटाना पड़ता है ना, जैसे you are literally standing naked, like facing yourself. And it's a process. I don't know what it is that I have gone through a few times, that it's not easy. It's not easy. If I didn't have the support, I didn't have a good support system around you. Like I have spoken to Richa a lot of times. And when I was doing yoga, there was a mentor I had. So I have always sent, जिस समय हम प्रोसेस से जाते हैं उस समय हमें टूल्स भी भगवान आसपास भेज देता है कि भाई तुम्हारी ये तुम प्रोसेस से जाओगे, so he gets it ready for you too. But yeah, it when you get there, or when you are getting there and you're not aware of it, the end result is that, but the process is hard. It's not easy. It's just very difficult. But yes, Richaji, go ahead. so अभी तो शमदम की स्थिति चल रही है. अभी तो शमदम की स्थिति चल रही है, तो इतना सरल होने से रहा. एंड दिस इज नॉट मैनिपुलेटिव, दिस इज नॉट मैनिपुलेशन. आप सत्य को दृष्टि में रखकर, सत्य से प्रेरित होकर, स्वधर्म को दृष्टि में रखकर कोई कार्य करते हैं, और परिस्थिति में क्या उचित है उसके अनुसार कार्य करते हैं. संभव तब होता है जब आप हर एक व्यक्ति में सत्य का कुछ तो अंश देख पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं आता है. अन्यथा तो ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझे इतना परेशान करता है, इसके कारण तो मेरा जीवन इतना बिल्कुल नर्क बना हुआ है. तो भीतर एक चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है. महत्वपूर्ण ये है कि आप उस चिड़चिड़ापन से ड्रिवन हैं. क्या वो चिड़चिड़ापन आपका मालिक बना हुआ है, या आप उस चिड़चिड़ापन को देख पा रहे हैं. तो एक साक्षी भाव बना हुआ है. महत्वपूर्ण ये है, जब साक्षी भाव बना रहेगा तो थोड़ा आप समय लोगे. You will be in your space, maybe silent for a little while, and you will be able to come out of it. क्योंकि ये जो पूरा रिएक्शंस का खेल होता है, ये शारीरिक है. That we all know by now, isn't it? And शरीर की ये बोलूं कि दिस इज द स्पेशलिटी, कि यदि उसको देखा जाए, उस पर दृष्टिपात किया जाए, तो वो अपने आप बैलेंस में आ जाता है. इट इज लाइक एक बहुत ही क्योटिक क्लास है, बहुत शोरगुल चल रहा है. शिक्षक जैसे ही क्लास में आता है, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं. तो आप वो शिक्षक बन जाते हैं, और शरीर जो इतना हंगामा कर रहा होता है वो चुप हो जाता है. और कहीं पर तो अपनी दृष्टि भी बढ़ानी पड़ती है. यहाँ पर करुणा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. अगर आप कंपैशनेट नहीं हो सकते, करुणामयी नहीं हो सकते, कि अभी उनकी यात्रा में वो शायद बहुत पीछे हैं, अभी वो शायद कृपा को उपलब्ध नहीं हुए हैं, और कृष्ण देखेंगे ना, मैं कौन हूं देखने वाली, कृष्ण देखेंगे. So let me understand their situation, and if the need is to show anger, I show anger. The whole point is
आप उस एंगर से कितने लिप्त हो गए हैं और आप उस एंगर से कितने बचे हुए हैं। अगर आप बचे हुए हैं देन द जॉब इज डन। लेकिन अगर आप लिप्त हो गए तब आप तो करता हो गए ना। द मोमेंट यू एम्ब्रेस दैट एंगर and that becomes your identity, then you have got an identity, then you are no more a witness. तो सारा खेल उस साक्षी भाव को बना के रखने का है। लोग इरिटेट करेंगे, परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देंगी, एक श्रद्धा बनी रहे कि संसार में तो चुनौती होगा, एक श्रद्धा बनी रहे कि युद्ध तो प्रति क्षण रहेगा। पैदा लेना ही युद्ध में पैदा लेना है, जन्म ही युद्ध में होता है। इस युद्ध में शांति की अपेक्षा ना करें। शांति तो सिर्फ समर्पण में मिलेगा। शांति स्व में जब स्थित हो जाएंगे तब मिलेगा। तो करने दे सबको जो कार्य करना है, जो धर्मोचित है वो मैं कर पाऊं और मैं साक्षित्व में जीऊं, मैं साक्षित्व में बनी रहूं और दुनिया के लिए करुणा। और करुणा का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हर चीज को हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, हम डोरमैट हो गए कि भाई कोई भी हमें रौंद के चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए। करुणा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अभी उनका समय शायद नहीं आया है, दे प्रोबेबली नीड मोर हेल्प, ब्लेस देम, तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो एंड यू स्टे unaffected. And if you need, shout. If you need to prove your point, do that. Just see you are not getting into it. You are able to create that distance. That is important. So this has to be handled like this. जितना ज्यादा आप साक्षी भाव को बना के रख पाएंगे, जितना ज्यादा आप स्वयं को खोने से बचा पाएंगे, फिसलने से बचा पाएंगे, उतना ज्यादा या उतनी तीव्रता से आप कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, सो 12वें श्लोक से करना है ना। हमने देखा था कि जो अच्छा उसका भी कुछ शायद बच गया था। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ, 11वें में था। मनुष्य जिस भी दिशा में जाता है वो मेरा मेरा ही मार्ग होता है। इट इज माई पाथ ओ सन ऑफ पृथा दैट men tread in all ways. किसी भी तरीके से मनुष्य जिस भी मार्ग में चलने का प्रयास करता है वो दरअसल वस्तुतः मेरे ही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वो मुझे ही ढूंढ रहा होता है। और ये हमने कई बार कहा है ना कि हम संसार में भी यदि किसी को ढूंढ रहे होते हैं तो वो असल में कृष्ण होते हैं। इसीलिए कुछ भी मिल जाता है, कोई भी इच्छा फुलफिल हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो भी इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि जो असल इच्छा है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं और अभी हमने उसका चीप सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, सस्ता विकल्प, और हम उस सस्ते विकल्प से काम चला रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमारे हाथ वो जो असली है वो तो आने से रहा। ये जो सस्ता विकल्प है ना, ये बड़ा संभव है। मोबाइल खरीद लिया, प्रमोशन पा लिया, शॉपिंग कर आए, शादी कर ली, घर खरीद लिया, घूमने चले गए, ये सब संभव लगता है, ये अपने हाथ में लगता है, अचीवेबल लगता है, लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो जो मिलता है पहले
ये है ना एक भाषा जो प्राप्त हो रहा है, जो गारंटी है, क्या है उसका एग्जैक्ट लाइन? उसको छोड़ करके, निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ नहीं जाते हैं। जो निश्चित है पहले उसको पकड़ लेते हैं। ये है ना एक सामाजिक तथ्य वाक्य। और इस वाक्य ने हमारे साथ क्या किया है? ये हमें कहती है कि नौकरी कर, नौकरी में निश्चित तनख्वाह आएगी। ये हमें कहती है कि परिवार बसाओ, क्योंकि परिवार में ही खुशी मिलेगी। दो लोग निश्चित हमेशा सदा खड़ा रहेंगे तुम्हें देखने के लिए। ये हमें कहती है कि ढर्रे पर ही चलो, क्योंकि ढर्रा तो प्रूवन है, संसार सदियों से चल रहा है और देखो वो अपने आप को चला पाया है, अभी तक चल रहा है, इसका मतलब ढर्रा प्रूवन है, तो वो निश्चित है। और इसीलिए परिवर्तन इतना कठिन होता है, क्योंकि हमारा जो रोम रोम है ना, वो निश्चितता मांग रहा होता है। हमारा रोम रोम निश्चितता मांग रहा होता है। इट वॉन्ट्स सिक्योरिटी, इट वॉन्ट्स श्योरिटी। तो कैसे हम अपने इस ल्यूक्रेटिव जॉब को छोड़ करके कुछ ऐसे में जंप कर जाएं जो कि पता नहीं सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं, कैसा वेंचर होगा। और इनिशियली बड़ा एक्साइटमेंट होता है कोई भी वेंचर में जाने से पहले, क्योंकि क्या उम्मीद क्या होती है, ये वेंचर मुझे वो दे देगा जो मेरी आखिरी इच्छा है। क्योंकि आखिरी इच्छा का तो पता नहीं है ना। आप बात कीजिए तो आजकल पर्पस ऑफ लाइफ कितना कॉमनली यूज्ड फ्रेज है। मेरी कोचिंग फ्रेटर्निटी में तो पर्पस ऑफ लाइफ इज अ बिग बिग गेम। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का पता नहीं है, हु एम आई वो पता नहीं है, पर्पस लेकिन पता है। सो this new venture also promises the same. Maybe this is my purpose of life, this is what I'm supposed to do, this is what I'm supposed to, I meant for. And so we look for Krishna in all the wrong direction. पर कृष्ण कहते हैं कि जैसे मुझे भजोगे मैं भी वैसे ही भजूंगा। तो मुझे गलत रास्ते से भजोगे तो उस रास्ते, जिस कारण से उस रास्ते पर चले हो, वही मैं तुमको दूंगा ना। उस रास्ते पर क्यों चले? क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वार्थ है, लालच है, तुम्हारे भीतर डर है, तुम्हारे भीतर कामनाएं हैं, तो मैं तुमको और कामना दूंगा, और डर दूंगा, और लालच दूंगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। ठीक है ना? सो कृष्ण और कृष्ण की माया, तो संसार में भी जो होता है वो कृष्ण की माया की ही है, तो कृष्ण से भिन्न तो हो नहीं सकता। वन सेकेंड। बारहवें पे चलते हैं। कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Longing for success in action in this world, men worship the gods because success resulting from action is quickly attained in the human world. इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है।
तो जिन्हें ये लगता है कि कर्म वो करते हैं, आई एम द डूअर, वो तो फल की इच्छा रखते ही रखेंगे। जनरली हमने ये सुना होगा, यार काम किया तो रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो फायदा क्या। तो रिजल्ट ना हो तो हम तो कोई काम करेंगे ही नहीं। मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पूछती थी कि अगर आपके जीवन से 30th गायब कर दिया जाए तो विल यू स्टिल वर्क? तो चुप हो जाते थे सब। तो बिना इच्छा के, बिना काम बिना डिजायर्स के, बिना कामनाओं के काम तो होगा नहीं। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं हमको, कितना मजेदार है ये, कि मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। सो दोज हु वांट, एंड दैट्स व्हाई वी ट्रेड। मंदिरों में जो हम देखते हैं या जिस भी ईश्वर पूजन की पद्धति में हम देखते हैं, ऑल दैट वी लुक फॉरवर्ड इज कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हे भगवान मेरा पति शांत हो जाए, हे भगवान मेरा बच्चा सही रास्ते पे चले, हे भगवान एक प्रमोशन चाहिए, हे भगवान टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा है, हे भगवान एक अच्छा घर चाहिए। सो एंड as if gods are meant to be they are meant to give that only। and हमने ये बार बार कहा है कि देवी देवताओं से क्या अर्थ है, that's the highest in the respective that we can look for। तो धन में यदि सबसे उत्कृष्ट कोई है तो वहां लक्ष्मी आ गई, विद्या में सबसे उत्कृष्ट कोई है तो सरस्वती आ गई। तो ऑब्वियसली जब they are good at the things of the world, then that is all that they will also provide us। उनसे हम मोक्ष की प्रार्थना तो नहीं करते हैं, एंड ये कभी अक्कर भी नहीं करता है कि लक्ष्मी के सामने बैठ खड़े होकर के हम उनसे बोले कि हे माँ मुझे इस संसार से मुक्ति दिला, या सरस्वती से हम ये कहे कि अब अविद्या में मत घुमाओ, मुझे पराविद्या दो। हम कहते हैं बुद्धि दो कि संसार में हम ढंग से काम करें। दुर्गा से कहते हैं कि माँ हमें शक्ति दो ताकि हम इस संसार में कमजोर ना पड़े। Even those whom you see talking about realization, self realization, वो बात करेंगे शिव की, वहीं पे बात होती है शिव की, और उनके मुख से हम गणपति और शेष किसी भी देवी देवता के विषय में नहीं सुनते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण इंगित कर रहे हैं कि, और इसीलिए शायद कृष्ण के गीता रूप का पूजन भी नहीं होता है, कृष्ण के भी बाल रूप का पूजन होता है, और बाल रूप के पूजन से लोगों का ज्यादातर अर्थ रहता है कि भाई इस घर में कृष्ण रूपी बालक हो जाए, जन्म ले। द मोमेंट द लेडी इज एक्सपेक्टिंग, कृष्ण का एक पोस्टर जरूर चिपक जाता है कमरे में, that you keep looking at the poster and the child will be like that। गीता के कृष्ण कहाँ होते हैं? जब हम राधा कृष्ण को साथ में पूछते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमारा भी प्रेम संबंध ऐसा ही प्रगाढ़ हो, और इसीलिए हम शायद मीरा को नहीं भजते, मीरा को नहीं पूछते, क्योंकि हम उस समर्पण की इच्छा नहीं रखते, हम उस समर्पण की आकांक्षा नहीं रखते। So if you look at all the gods and goddesses that we worship, it is always about the things in the world। So they are actually very much in the worldly realm। They also hence become Prakriti। World is Prakriti, they are also worldly, so they also become Prakriti। उनकी उत्पत्ति के भी कारण तो ऐसे ही रहे हैं ना, प्रकृति से ही बिल्कुल उत्पत्ति हुई है।
तो जिसको तो संसार में ही सिर्फ फल चाहिए अपने कर्मों के, तो वो तो उनको आप इन्हीं देवी देवताओं को पूजते देख पाएंगे, not beyond. I remember when we were doing this with Acharya ji, he said that आपके देवी देवताओं को सांसारिक चीजें देने से ज्यादा कोई पावर भी नहीं है. They can't give you moksha. They are not meant to give you moksha. And then Krishna says, because success resulting from action is quickly attained in the human world. भौतिक चीज है, भौतिक जगत में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है. Anything else that's coming up here? ये जो आपने देवी देवताओं का बताया, तो इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वो मतलब बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर. इसीलिए गुरु को जो है हम देवी देवता के ऊपर ही रखते हैं. वेरी ट्रू. और कृष्ण इसमें एक तरह से हिंट कर रहे हैं कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो गो फॉर द हाईएस्ट. व्हाई डू यू वांट टू लिमिट योरसेल्फ टू जो देवी देवता या जो मटेरियल, मतलब पूरी गीता में तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि गो फॉर द हाईएस्ट इन डिफरेंट वेज. गो फॉर द हाईएस्ट इन डिफरेंट वेज. संसार में रह जाओगे तो क्या मिलेगा, हर बार वो यही बता रहे हैं कि संसार में रह जाओगे तो क्या मिलेगा. तो क्या तुम्हें बार बार यही चाहिए, हर बार आओगे, हर बार इन्हीं चीजों की इच्छा करोगे, क्या इसी से तुम्हारा मन भरता है? टाइम एंड अगेन दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, है ना. इसके आगे या चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. The fourfold caste was created by me by the differentiation of guna and karma. Though I am the author thereof, know me to be the non-doer and changeless. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है. इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान. एक तो बहुत सारे लोगों को बड़ी कठिनाई होगी कि अरे ये कास्ट सिस्टम कृष्ण का रचा हुआ है. बिग जोल्ट. बट कृष्ण इसके आगे की बात भी कह रहे हैं ना. वो कह रहे हैं कि ये कास्ट सिस्टम जो है, जो जाति प्रथा है, ये आई कैसे, इसका फंडामेंटल बेसिस क्या है. इसका फंडामेंटल बेसिस ये नहीं है कि आप जन्म कहाँ लेते हैं, किस परिवार में लेते हैं, कि आपने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण हो गए, और शूद्र के घर जन्म लिया है तो शूद्र हो गए. ऐसा नहीं है. इसका बहुत जो फाउंडेशनल कारण है वो है गुण और कर्म के बीच जो भेद पैदा होता है. तो गुण क्या है और कर्म क्या है? गुण वो है जिसके साथ हमारा जन्म होता है. तो गुण पूरी तरीके से शारीरिक है. जन्म के साथ ही हमारे शरीर में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का एक अनुपात होता है. इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, कुछ ज्यादा चंट होते हैं, कुछ स्थिर होते हैं, कुछ ठीक ठाक से होते हैं. गुणों का भेद है, किस अनुपात में कहाँ पे क्या मिश्रण है. तो ये तो शरीर से आया, और अब शरीर की एक संरचना है, तो बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है. अगर इसको किसी भी तरीके से थोड़ा भी प्रभावित करना है तो खान पान पे ध्यान देना पड़ता है कि भाई मेरे भोजन में सात्विक
तत्व ज्यादा हो, जो तमोगुण से लेश चीजें हैं उनकी मात्रा ना ही हो, तो हम सतोगुण की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर कृष्ण ही हमको एक उपाय भी दे रहे हैं। क्या उपाय है? अपनी जाति को बदल पाने का। और वो क्या है? वो है कर्म। क्योंकि आप किसी भी गुण धर्म में जन्म लें, आपके पास फिर भी एक स्वतंत्रता है कि आप कौन सा कर्म करेंगे। तो कृष्ण ने ही आपको स्वतंत्रता दी है कि आपको जो इच्छा आप वो करिए। आपकी यदि इच्छा है कि आपके आपके जो शारीरिक गुण हैं उनसे ही प्रभावित होकर आपको सारे कर्म करने हैं, जैसा कि शायद दुर्योधन करता था। जब दुर्योधन ने कहा कि मुझे पाप और पुण्य मत बताओ, मुझे पता है पुण्य क्या होता है और उचित कर्म क्या है मुझे पता है। मेरी दिक्कत यह है कि उचित कर्म करने के लिए मेरे भीतर कोई इच्छा ही नहीं है, और जो अनुचित कर्म है उसकी तरफ मैं खींचा चला जाता हूं। तो शायद दुर्योधन अपनी प्रकृति के वश में ही थे। तो कृष्ण ने ये पूरी स्वतंत्रता दी है कि चाहो तो उस गुण के वश में रहकर कर्म भी, गुण के अधीन रहकर कर्म भी वैसे ही करो जो तुम्हारे गुणवत्ता के अनुसार है। चाहो तो अपने गुण के आगे बढ़ो और कर्म चुन करके करो। जहां चुनाव आएगा वहां पे कृष्ण की संभावना बढ़ती है। वहां पे यह संभावना है कि भले आप अपने गुण के कारण शूद्र हैं, किंतु आप ब्राह्मण हो सकते हैं। वहां संभावना है कि यदि आप अपने गुण के कारण ब्राह्मण हैं तो आप नीचे भी जा सकते हैं। तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ये क्रिएट किया था? क्योंकि गुण जो है वो प्रकृति के साथ हमारे पास आती है, और पूरी प्रकृति ही जब कृष्ण की है तो वो गुण भी कृष्ण के ही हैं। कर्म एक तो संचित कर्म है, तो कुछ प्रारब्ध है जिसको हम लेकर के आते हैं, जिसके हम अधीन भी अपने आप को पाते हैं। किंतु उसके साथ ही हमारे पास सदा ये चुनाव रहता है कि आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ये कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सतोगुण भी बहुत हैं और मान लीजिए आप सारे कार्य पुण्य रूप ही करते हैं, तो यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कर्म श्रृंखला तो कहीं रुक ही नहीं रही है ना। अच्छे कर्म है, फल तो आएंगे ही ना। भले अच्छे कर्म है तो अच्छे फल आए, किंतु फल तो आएंगे ही। तो कर्म फल की जो श्रृंखला है उसमें तो आप बंधे ही हुए हैं। कार्य हो रहा है और उसका एक कारण है। तो इस कार्य कारण की श्रृंखला से, इस कर्म और फल की श्रृंखला से आप बाहर कब निकलिएगा? आप तो जब आएंगे आपके पास कुछ ना कुछ गुण होगा और कर्म होगा। इसीलिए ये बात और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है कि हमारे पास एक चुनाव है जहां हम अपने प्रारब्ध को लांघ कर उसके आगे निकल सकते हैं। क्योंकि यदि मुक्ति संभव है, यदि मुक्ति सत्य है, यदि कैवल्य सत्य है, यदि मोक्ष सत्य है, तो इस श्रृंखला से हमको बाहर कूदना पड़ेगा। तो ये श्रृंखला तो अन्यथा सदा चलती रहेगी। और जब आप इस श्रृंखला से बाहर कूदते हैं, वहीं पर सबीज समाधि शुरू होती है, और फिर वहां से आप निर्बीज समाधि की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अभी तो शरीर बचा है ना, तो बीज तो है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही इसका रचयिता हूं। गुण है और कर्म है। अब
कुतर्की लोग ना इसमें गुणों को पकड़ लेंगे कि भाई मेरी संरचना ऐसी है, मेरा प्रारब्ध ऐसा है, तो मैं तो ऐसा ही कार्य करूंगा। किंतु जिसमें जरा भी श्रद्धा होगी और जरा भी बोध होगा, दोनों, वो कर्मों का समुचित चयन करेगा, वो धर्मोचित कर्म करने से नहीं भागेगा, क्योंकि उसके लिए कृष्ण प्रधान हो जाएंगे। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं भले ही इसका रचयिता हूं, आई एम द ऑथर देयर ऑफ, नो मी टू बी द नॉन डूअर एंड चेंजलेस, फिर भी तुम मुझे अविनाशी और अकर्ता जानो। तो वो अकर्ता कैसे हुए जब उन्होंने रचा? क्योंकि ये रचने का उन्होंने कोई श्रेय नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते हो, कि तुम इसमें ही बंद के रह जाओ। तुम मुक्त हो इसके बाहर कूदने के लिए, तुम मुक्त हो उसको चुनने के लिए जो तुम्हारे गुण का नहीं है, तो तुम्हारे कर्म भिन्न हो जाएंगे। इसीलिए रैदास की संभावना रही, जाति से तो चमार थे ना, जाति से तो चमार थे। कबीर की संभावना रही, जाति से जुलाहा थे, किंतु सत्य को प्राप्त हुए। और ये एक हम लोगों के लिए बहुत दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट होप फॉर ऑल ऑफ अस। एक संभावना जो हम कहते हैं ना, तो वाकई संभव है। दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट दैट अश्योर्स अस कि भाई तुमने कहीं भी जन्म लिया हो, तुम्हारी कैसी भी प्रवृत्ति हो, तुम इसी क्षण कृष्ण को प्राप्त हो सकते हो। So there is a great possibility and hence there is great hope and hence one can actually always be in श्रद्धा। इसी कारण से आप श्रद्धा में डूब जाइए कि संभावना तो है, कृष्ण ने ही दिया है, उन्होंने ही छोड़ा है, तो फिर मैं श्रद्धा चुनती हूँ। Anything in rising, end of the day again it's part of Maya itself. Yes, कृष्ण की ही माया है ना प्रदीप जी। Anything arising here? एक क्वेश्चन था हम्म कि जैसे आपने बोला संभावना है और ये सब ठीक है, लेकिन जब कोई बहाने बनाता है कि नहीं हमसे तो होगा ही नहीं है, जैसे आपने गुणों का भी एग्जाम्पल दिया, तो मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे ना गुस्सा सा आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आ रहा है तो मतलब बस उसको देखते देखते निकाल देना चाहिए, या फिर क्या, मतलब मुझे क्यों बुरा लग रहा है वो ऐसे बोल रहा है तो? कहीं पर शायद आप भी एक फायदा ढूंढ रहे हो ना, नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्रोध आ रहा है। मतलब पता है क्यों नहीं आ रही है? मतलब कोई जब अपने आप को बड़ा लाचार दिखाता है, हम्म। तो हमें लगता है कि यार मैंने किया है ना, मैंने अपनी संभावना को सुदृढ़ किया है, तो देयर इज दिस आईनेस, मैंने किया है। तो अहंकार खड़ा होके बोलता है कि मैं जब कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। व्हाई आर यू सेइंग नो टू इट? सो अहंकार को पोषण नहीं मिलता है ना, तो अहंकार क्रोधित हो जाता है। तुम मुझे झुठला रहे हो, तुम ये मुझे बता रहे हो कि संभावना नहीं है। सो एंगर हैपेंस, लेकिन उसमें छुपे उसकी बेवकूफी देख लोगे
तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, बस उतना ही काफ़ी होता है। हमारा झंझट तब ज़्यादा हो जाता है जब उस व्यक्ति के साथ उठना-बैठना है, पारिवारिक संबंध है, हर क्षण उनके कार्य से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब जैसे अभी मेरी बेटी का ना एग्ज़ाम खत्म हो गया है, घर में है, तो दिन भर घर में। अब हम सबके घर छोटे ही हैं। आई स्टे इन अ 2 बीएचके फ्लैट, कितना स्थान है? एक जगह टीवी चल रहा है ज़ोर से तो दूसरे कमरे में आवाज़ आती ही है। फिर कई बार शी विल से कि नहीं, आई वांट टू डांस। सो एवरीबॉडी इज़ इन द हाउस। तो आई गेट डिस्टर्ब्ड लाइक क्रेज़ी। मैं अपने कार्य में कभी ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। बड़ा कुछ भी करने बैठो तो कभी मेड का कुछ रिक्वायरमेंट कि ये क्या करना है, वो क्या करना है, कभी डॉटर का कुछ रिक्वायरमेंट, समथिंग और अदर कीप्स अराइजिंग। तो मैंने कहा कि भैया ये तो चलता ही रहेगा ना, इससे तो छुटकारा मिलने से रहा। जब मिलेगा तब मिलेगा, तो अभी का समय क्या करना है, बर्बाद करना है। सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हेन आई एम गोना सिट। तब 2 दिन से दिनचर्या की है कि सुबह ही बैठ रही हूँ कि 8 बजे तक अपने काम पे बैठो जब तक सब शांति है, एंड देन यू गेट अप फॉर योर डेली कोर्स। तो रास्ता तो इसी में से निकालना पड़ेगा, हम दूसरों को क्या बदल पाएँगे? हाँ, एक्चुअली मतलब मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे होता है कि वो बहुत 10 मतलब 15 से 20 सालों से वो विक्टिमहुड में है और अब हम लोग का गिव अप होने लगा है। तो इनफैक्ट अभी क्लास के पहले ही मैंने आपकी क्लास के बारे में उसे बताया, मतलब जैसे जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि हिंदी में होना चाहिए और हमारी मतलब कोई हमें क्वेश्चन होगा तो कोई बताएगा ये सब। उसके बाद भी उसने बोला कि नहीं, मतलब वो उसने अपने बहुत नए हर बार, जैसे आप एक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो नया कुछ एक्सक्यूज आएगा। तो फिर मुझे गुस्सा आने लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं अपना मूड मतलब आई नॉट इसको मैं और बढ़ाऊंगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करते हैं, बट आई वांटेड जो टू नो कि विक्टिम मुझ मोड मुझ में में होता क्यों आ है रहा ना ऋचा, है। उसके पास एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट होता है। वो अंडरलाइंग स्टेटमेंट ये होता है कि मेरे साथ इतना बुरा किया गया है, तो मुझे भी दुनिया के साथ बुरा करने का अधिकार है। हाँ, बिकॉज़ ये तो आई मैंने हैव बहुत बीन देखा है। रॉन्ग्ड, हम्म। बिकॉज़ आई हैव बीन रॉन्ग्ड, सो आई हैव द राइट टू रॉन्ग अदर्स। टिट फॉर टैट हम बचपन से सीखते आते हैं ना। सो प्लीज ऑलवेज नो देयर इज ऑलवेज अ सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ नॉट डूइंग द राइट थिंग। आप भी कभी यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट सी व्हाट इज द सेकेंडरी बेनिफिट दैट यू आर डिराइविंग। कुछ ना कुछ तो हम अपना उल्लू सीधा कर ही रहे होते हैं, उसके बिना नहीं होता है। आई नो ऑफ सो मेनी पीपल, इनफैक्ट बिकॉज हीलिंग से मेरा बहुत रोज का नाता है। My Reiki master only was telling us once that she was working with a lady. She was not at all well, and finally she kept improving to a level that अभी वो पूरे समय सोई हुई हैं, कम से कम अब वो व्हील चेयर पे आ गई हैं। शी इज एबल टू, शी इज बेटर, शी इज मोर मोबाइल। पर उसके आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। देन शी हैड अ वर्ड विथ हर, शी सेड व्हाट इज होल्डिंग यू फ्रॉम रिकवरिंग नाउ ऑनवर्ड्स। सो that lady finally confessed that if I'll recover totally, my husband will not pay attention to me. So I am like this so that I can have him around me. लोग ठीक नहीं होते इन कारणों से। जो साइकोलॉजी होती है ना, वो इतनी सीधी नहीं होती है। मन इतना सीधा नहीं होता है। बहुत बहुत भीतर मैनिपुलेशन चलता है, बहुत आड़े-टेढ़े खेल चलते हैं। The games are really tricky and people don't accept. And in fact, lot of time people are not even aware that Yeah. this is the benefit that they are gaining. तो ये जो सेकेंडरी बेनिफिट वाली बात की आपने, ये भी तो एक गहराई की बात है। ये भी तो एक्सेप्ट करना में इट टेक्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Lot of understanding.
And that is why your sister will not come to this session. Because if she comes here, her उसका जो अपना ढांचा है ना, उसके कष्टों का, उसकी डिपेंडेंसी का, उसके विक्टिम होने का, वो ढहने लगेगा. She will not be able to take it so easily. It will start crumbling. छटपटाने लगेंगी वो. उनको और कष्ट हो जाएगा. अरे हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, कैसे? I was wronged. You know, I'm doing this course on NLP right now. And this lady she has totally worked on it and she's totally come out of that syndrome. And she very easily said during some story that she was telling something context, that she was raped at the age of 18. A big wrong, no? She was violated. And how do we look at it? And now you will not see an iota of pain in her statement. It's just an event for her. Otherwise it was so easy ना, that वो अपने सारे वुंड को अपने भीतर रखती और उस वुंड से ही वो चालित होती. Then she wouldn't have moved ahead in life. ओशो को मैं सुन रही थी जब वो द्रौपदी के चीरहरण की बात करते हैं कि कृष्ण कैसे उन्हें आके बचाते हैं, तो ओशो कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, या क्योंकि कहीं से भी जब कृष्ण मानवीय रूप में है तो उसको ना उनको बहुत अलौकिक शक्तियों के साथ नहीं देखते हैं. तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए होंगे और द्रौपदी को चीरहरण से बचा दिया होगा, लेकिन शारीरिक चीरहरण से ज्यादा बड़ी बात होती है मानसिक चीरहरण. कृष्ण ने संभवतः द्रौपदी को उस मानसिक अवस्था से बचाया होगा. इसीलिए वो जो कुछ भी हुआ वो मात्र द्रौपदी के लिए एक इवेंट बन गया होगा. That she felt saved, not because clothes wouldn't have been taken away, but because on her psyche, on her psychology, Krishna would have saved her. तो जो देह में बसा रहेगा वो इससे बाहर नहीं आ पाएगा. सारा ह्यूमन क्राई शारीरिक क्षय का होता है, शारीरिक अपमान का होता है, शारीरिक वायलेशन का होता है, क्योंकि हम शरीर में बसते हैं. दिस इज माई बॉडी ना, एंड बॉडी इज सो इम्पोर्टेंट. तो विक्टिम मोड में रह करके हम, और बहुत सारे लोग विक्टिम मोड में रहते हैं क्योंकि इट गिव्स देम लॉट ऑफ अटेंशन. लोग जब अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, look at the amount of pleasure they derive in it. मेरी बात बहुत खराब लगेगी, तीखी लगेगी, but that's how it is. So Krishna is saying that even though I have authored all this, know me to be non-doer. I leave it to you. You do whatever. मैं अकर्ता हूं. I have nothing to do. लोग कहते ना, हे भगवान मेरा भाग्य कैसा बनाया. भगवान हमारा हिसाब किताब रखता है. He has no damn job to keep the accounting कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. ना उसको पत्ता हिलाने में कोई रुचि है, ना पत्ता न हिलाने में कोई रुचि है. पत्ता का अपना स्वभाव है, वो जैसे हिले. कहते हैं ना, पत्ता पत्ता ईश्वर की इच्छा से ही हिलता है. He has nothing to do with all this.
And so he says that despite all this, know me to be the non-doer and changeless. अच्छा, you said something कि पत्ता पत्ता ईश्वर की इच्छा से हिलता है, ये बात नहीं है क्योंकि कृष्ण को तो कुछ लेना देना नहीं है, राइट? बट एट द सेम टाइम फिर ये संसार इतना सुचारू रूप से कैसे चल रहा है? somebody has to be doing this, right? Why? अच्छा, ये ना बहुत मजेदार चीज है. आई वॉज लिसनिंग टू सर्वप्रियानंदा जी एंड दिस जस्ट हैपेंड. पूरी प्रकृति आदत से चलती है. द एंटायर प्रकृति इज गाइडेड बाय हैबिट्स, एंड दैट इज व्हाई अगर आप एक दृष्टि से देखें तो सूर्य की वो आदत है कि उसमें वैसी गर्मी होगी और समय के साथ वो गर्मी खत्म होगी. पृथ्वी की आदत है कि वो उसी ऑर्बिट पे घूमेगा. सभी ग्रहों की वो आदत है कि वो उसी तरीके से दौड़ेंगे. उनकी गति वैसी होगी. जिसको कि हम उनका कैरेक्टर कहते हैं, जिसको कि हम उनका बिहेवियर कहते हैं, एक्चुअली उनकी आदत भी है. जैसे हम कहते हैं ना कि यार गुस्सा करना इसकी इसकी आदत है, तो गुस्सा एक तरह का बिहेवियर है ना, पर वो आदत हम बोलते हैं ना. ठीक उसी तरीके से. सो the entire universe is actually nothing but habit, and that is why even on the planet everybody is concerned with creating good habits. People even say that man is the product of their habits. तो ये जो चल रहा है वो तो इसलिए चल रहा है बिकॉज इट इज सपोज उसकी वही आदत है, उसका वही गुण धर्म है, और वो अपने गुण से बाहर कुछ नहीं करेगा. जंगल है, जंगल में किसी को माली की आवश्यकता पड़ती है क्या कि जंगल चलता रहे? जंगल का अपना नियम है. पत्ते झड़ेंगे, वो खाद बनेगा, वृष्टि होगी, नए पेड़ उगेंगे, पेड़ों को पानी मिलेगा. उसमें जो बहुत छोटे हैं वो मर भी जाएंगे. पेड़ आएंगे जाएंगे, और जंगल सदियों से चलता रहा है. किसने चलाया है जंगल को? व्हाट एक्सटर्नल इंटरवेंशन डिड यू नीड फॉर द फॉरेस्ट टू सर्वाइव? So it that is its own habit, and so it will survive itself. तो कोई नहीं है. माया की अपनी आदत है कि वो ऐसी चलती है. किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए हम इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, क्रिएशन नहीं कहते हैं. जब मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे वहां पर ये आता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये अभिव्यक्ति है, ये रचना नहीं है. हाँ रचा. आपने जब ये बोला ना तो मुझे ये मतलब ये रियलाइज हुआ कि फिर ये गुस्सा होना या विक्टिम मोड में होना ये सब भी आदतें ही हैं, एकदम और बस बिल्कुल. फिर इनको तोड़ दिया तो मुक्त हो जाएंगे. वो आइडेंटिटी बन जाती है हमारी. मेरे साथ ऐसा हुआ, वो आइडेंटिटी बन जाती है हमारी. इसलिए हम उस आइडेंटिटी में बड़ा मजा लेते हैं, और कुछ नहीं है. मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, मेरी जिंदगी में इतने कष्ट आए. सब कहानियां हैं, कहानियों की आदत है. आदत ले लोगे ना तो लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं. उनका एंटरटेनमेंट चैनल ही बंद हो जाएगा. बोर हो जाएंगे तुरंत जीवन से. तुरंत निसारता दिखने लगेगी क्या हो रहा है इस जीवन में. इसलिए बड़ा जरूरी है to keep continuing the patterns. हाँ विद्या बोलिए.
तो इसी वजह से ही कभी-कभी लोगों को बदलना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे किसी ने हार्डशिप देखी है बचपन से लेके, हाउ दे struggled to be where they are, and they're so caught up in their story that they keep repeating and telling to each generation that comes. But for those people, it's hard to change because they cannot get out of that mode that I'm a the way, self-made man. yeah. पर उनके लिए कोई भी नया आइडिया या जैसे आजकल कहा जाता है ना, जैसे पहले हम कहते थे बच्चों को वर्क हार्ड, और अब ये हो गया है कि no, you don't have to work hard, you have to work hard, but you have to work smarter, like you have to be smart about it. तो अभी ये नया वो निकल गया है। तो मुझे लगता है कि जब लोग अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिमाइज करने के यूज टू हो जाते हैं ना, तो उनके लिए एक कोई भी नया आइडिया अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, लाइक इट डिडंट हैपन टू मी, व्हाई वुड इट हैपन टू यू? लाइक दे आर सो क्लोज माइंडेड देन। Actually, their entire Not existence, entire जो उनका पूरा सिस्टम है ना, पूरा तंत्र है, that rejects. जब मैं विक्टिम हूं ना, that being victim actually is a safety net for me to keep preserving who I am. I identify with that and I create that as my safety net. वो मेरा ढाल बन जाता है। देखो मैं बीमार हूँ, ढाल ही तो होता है ना। कौन उठता है जल्दी बीमारी में कि मैं काम करता हूँ, और जो काम करता है वो उसको भी गिनता है कि देखो मैं तो इतना बीमार हूँ फिर भी मैं काम करता हूँ। सो हर दिशा से प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? उल्लू सीधा करना, अपना अपने आइडेंटिटी को और भी ज्यादा स्थायित्व देना, अपना होने के एहसास को और गहन करना। इज दैट नॉट व्हाट द प्राइम मोटिव इज? true. हमने दुनिया देखी है टाइप्स। उनको ये बोलेगा ना प्रदीप जी, आपने देखी तो बहुत है पर समझी नहीं है ना। समझा तो हमने है। Yeah, I know. So it is very difficult to explain them. So I have done a different way. So I just say yes to everyone and listen from one ear and get it out from the other ear. वो तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज टेल देम हाँ देखा तो सबने है, समझा है कि नहीं वो एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है। समझ के तब तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। 14th। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। Actions do not taint me, nor have I any thirst for the result of action. He who knows me thus is not fettered by action. कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो जो लोग कर्मों से बंधे हुए हैं, जो लोग जाति से बंधे हुए हैं, गुण से बंधे हुए हैं, वो तत्व को तो बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें तत्व का कुछ पता नहीं है। संदेश है हम सबके लिए, कर्म और फल की तो कहानी गीता में सबसे ज्यादा, गीता जानी ही इसलिए जाती है और शायद इसीलिए इतना महत्व भी है कि बताती है कि कितनी संभावना है कि कर्म तो होते रहेंगे किंतु फिर भी तुम कर्मों से
अलग कैसे रह सकते हो? कर्म तुम्हारे नहीं है, कर्म को होने दो, क्योंकि कर्मों का स्वभाव है होना, कर्मों की आदत है होना। शरीर का ही होना कर्म है। ये भीतर जो सारी क्रियाएं चल रही हैं, कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो। शरीर अब खुद चला रहा है, शरीर को पता है कैसे चलाना है। तो उसे जब भूख लगेगी तो वो तुम्हें भोजन के लिए इतना परेशान कर देगा कि तुम उसके लिए जाओगे, उठोगे, भोजन लाओगे। ये मत समझो कि तुम भोजन लेकर के आ रहे हो, तुम खा रहे हो। वो शरीर का ट्रिक है कि शरीर बता देगा कि भाई भोजन अब चाहिए और अब इसके बिना नहीं चलूंगा, और वो तुम्हें परेशान कर देगा कि तुम अंततः जाओगे और भोजन लाओगे। और यदि तुमने उसकी बात नहीं मानी, उसके अगेंस्ट चले गए, उसके विरुद्ध चले गए, तो फिर वो अपने कारनामे भी दिखाएगा। इसीलिए टू बिगिन फास्टिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क। और इसीलिए शरीर को धीरे 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 करके ट्रेन करना पड़ता है। यू हैव टू कीप टेलिंग, यू हैव टू कीप गिविंग द मैसेज रिपीटेडली कि अभी इतना भोजन नहीं मिलेगा, अभी इतना भोजन नहीं मिलेगा, अभी इतना भोजन नहीं मिलेगा। एंड व्हेन यू आर doing that it repeatedly, then the body starts to take the message, but initially it will not. So anything that is prakriti can be handled by practice, repetition. But again, going back to Patanjali, conscious repetition. If repetition is happening mechanically, it will not give you anything. Actions do not taint me, अछूते हैं, nor have I any thirst for the result of action. तो युद्ध की आवश्यकता है तो युद्ध करो, इसलिए नहीं कि युद्ध में विजय को प्राप्त होना है, इसलिए नहीं। धर्म के लिए खड़ा होना है, इसलिए धर्म के लिए खड़े हो, इसलिए नहीं कि अरे ये तो पता नहीं कब होगा, दिस इज नॉट एन इजी जॉब, नॉट अ डन डील, और मैं तो मार्टियर हूं। नॉट फॉर एनी रीजन। सो लेट द राइट एक्शन हैपन विदाउट रीजन। तो यदि कृष्ण को समझना है तो ये बहुत सरल है। देख लो कि जो इच्छा है वो किसकी है, कर्म की है या कर्मों के फल की है। हमारी पूरी इच्छा, हमारा पूरा ध्यान फल पर ही केंद्रित होता है। फल ना हो तो हम कर्म नहीं करते, करेंगे। मेरी niece है, so when she's asked to study, she would not, and examination में उसके नंबर पूरे आ जाते हैं, then she will tell, देखो अभी फुल मार्क्स आ गए ना, अभी मैं और ज्यादा पढ़ती तो इससे ज्यादा नंबर तो आ नहीं सकते थे, तो मैंने जितना पढ़ा उतना ठीक है। So you can't beat her in the logic. By logic she's absolutely right, 100 में 101 तो मिलेगा नहीं। She's already given you the best results. So the question is, now that's a different matter that she is good at her subjects, but the question is, are we studying for result? And that's what we are taught all the time. If there be not result, if there be no result, then we will not study. Simple, give up. तो फल ना हो तो क्या फायदा हर चीज का, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। उससे क्यों मिलने जा रहे हो, उससे क्या मिल जाएगा, ये क्यों करना है, इससे क्या मिल जाएगा। अनायास कुछ हो नहीं सकता, स्पॉन्टेनियसली कुछ हो नहीं सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। So the flower has to think, why should I bloom? Damn it. हर दिन bloom करने के लिए कह दिया जाता है, no, no, today I'll not bloom. So Krishna says, nor have I any thirst for the result of action. He who knows me thus is not fettered by action. जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता है, कर्मों के फल से नहीं बंधता है।
So he's already given us the सूत्र. यदि फल से नहीं बंधना है तो, कर्म फल से बाहर कूदना है तो, all that you have to do it is, and how do you do that? How do you disown the karma or the result, the fruit of the action? By disowning the karma. It is not your karma. It is just a karma. It is not your action. ये मैं इस चीज से ना बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. यहाँ लोग बोलते हैं ना, यू हैड योर डिनर. अरे योर डिनर मतलब, और किसका डिनर खाओगे? किसी और का डिनर खाने वाले हो? आई हैड माई ग्रेजुएशन इन दिस, आई डिड माई 12th इन दिस. और किसका 12th दे दोगे? आप किसी और का दे दोगे क्या? But look at this my that getting into every small bits and pieces. I had my lunch, I had my car. बात ही नहीं कर सकते. I appeared for my graduation. Whose else graduation exam will you appear for? ना. इतना गहरे सब बैठा हुआ है ना, that subconsciously लोग क्या बोल रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है. And it is very acceptable. It is very acceptable. क्योंकि हर कोई तो वहीं बैठा हुआ है ना, मैं में. So nobody questions this. Nobody even notices this. So if you have to be not, हाँ, रिचार्ड सिंह जो करता है वो भोगता है. Absolutely. So अगर भोगता बनोगे तो कर्ता बनना ही पड़ेगा. और अगर भोगता नहीं बनना है तो कर्ता होने से भाग जाओ. कर्म को होने दो. कर्म आपके द्वारा हो रहा है तो वो होने दो. कर्म का श्रेय यदि ले लिया कि आपने किया है, कहानी खत्म. ठीक है ना? That's the only way to not feel, experience that I have done it. It is because of me that this has happened. देखो अगर मैं मानी होती तो क्या होता? तुम लोग ये कर लेते. Anything arising? हाँ, युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो तो इसीलिए हुई थी ना कि हमें तो आपने 5 गांव भी नहीं दिए, तो कुछ पाने के लिए ही हुई थी ना. अगर ओरिजिन हम देखें तो इसको हम कैसे देखें कि बिना फल के इच्छा के तो ये कर्म शुरू नहीं हुआ था. वो जो था ना, वो युद्ध का निमित्त बना था. वो एक बहाना बन गया था कि 5 गांव भी नहीं दिए. किंतु धर्म का हनन तो हो ही रहा था, लगातार हो रहा था. तो किसी ना किसी कारण से तो युद्ध होना ही था. That just became a reason. The whole point is how much are they really owing the reason? कि क्या 5 गांव के बिना सरवाइव नहीं करेंगे? ऐसा तो था नहीं. जो पांडव अज्ञातवास में जी करके आ गए, जंगलों में इतने वर्ष रहे, ऐसा तो था नहीं वो जा नहीं सकते थे. But that had to happen because it was already too much of adharma all around. उसको निमित्त के रूप में देखिए, not as the prime reason. Those were options given to avoid, not reason for war. 5 गांव भी दे देंगे तो we will be happy. That's what was said. And then दुर्योधन said कि सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं देंगे. Yes. अर्जुन को लगता है कि वो भोगता है क्योंकि वो मारेंगे
अपने गुरु को, अपने पितामह को और सभी सगे संबंधियों को, तो हनन होगा उनका। उनको लगता है कि वो भोग रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन हिले हुए हैं, और इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि युद्ध का जो भी परिणाम होगा उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। हमने देखा भी था ना, शुरू में ही कृष्ण अ, ये अर्जुन से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि युद्ध जीतने के लिए करना है। युद्ध में तो तुम स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकते हो। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। एनीथिंग एल्स? चलिए फिर, sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।